3 start. Yes. ಏನಕಡೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಡ್ರಮ್ನ 3 1 ಚಲ. Okay. Very good afternoon boys and girls. I welcome you all to the session of 12th standard secretarial practice. 12वीं के secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. The remaining last head of the chapter of financial market is what is primary market and secondary market. Yesterday we saw the classification of the market as primary market and secondary market. The industrial market is classified as primary market and secondary market. The securities when traded for the first time, it is called as primary market. When securities already issued or further traded, they are called as secondary market. भाई साहब आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे उस में? हाँ? क्यों? किसको पूछे गए? Primary market and secondary market. So let's start the discussion with primary market. Page number 164. Please. In primary market, companies sell their shares, debentures, etc. for the first time to raise the fresh capital. जब कभी भी फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो पहली बार जब सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं जिस मार्केट पे, उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट. राइट. It exclusively deals with the new issue of securities that are securities that are issued for the investor for the very first time. As this market is also called as new issue market. Underline. This is also called as new issue market. It is also called as new issue market. क्योंकि securities जो है वो पहली बार यहाँ पर इशू की जाते हैं. So the primary market is also called as new issue market. प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिक्योरिटी जो है पहली बार जो है वो इशू की जाती है. The main function of primary market is to facilitate capital formation. It is a place where the investors can invest the surplus funds profitably and companies can raise capital easily. On the basis of the type of the funds raised, primary market can be classified as equity market and debt market. In equity market, what kind of securities will be traded? अरे कप मध्ये टाकून दे. तिकडे मला टाकून द्या कप मध्ये टाकून द्या. इथं नको देऊ, मस्ती करा तू फालतू. प्रत्येक छाती मस्ती मत करते. So primary market is also called as new issue market. On the basis of the securities issued, on the basis of the securities issued, the primary market is classified as equity market and debt market. Primary market and debt market. So equity market and debt market. Whenever shares are issued for the first time, they will be issued under which competition? Ala. Primary market is again classified as equity market and debt market. Equity market is a market where equity shares are issued, right? Now equity market is a market where the equity shares and preference shares are issued for the first time. जहाँ पर shares first time issue की जाएंगे उस प्राइमरी मार्केट को कौन सा मार्केट कहा जाएगा? इक्विटी मार्केट. और जहाँ डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे दैट इज डेट मार्केट. जहाँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते दैट इज इक्विटी मार्केट. और जहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते दैट इज कॉल्ड एज डेट मार्केट. यस और नो? राइट. इन equity market, securities like equity shares, preference shares, right issue, etc. are issued.
And in case of debt market, debentures, bonds, fixed deposit, etc. are issued. That is, debt related, borrowing capital related securities are traded in debt market for the first time, and equity related or share capital related securities are traded in the equity market, right? Now, methods of raising funds in the primary market. These are already being explained to you in the methods of issue of shares. Still, we'll have a quick revision. Let me ask questions. Questions पूछ लेता हूँ जरा. Okay. Starting with the first question, which is called IPO. IPO. बता मंगरूलकर, what is IPO? अच्छा, initial public offer में क्या होता है? Yes, exactly. IPO is initial public offer. Whenever shares are issued for the first time, it is called as initial public offer. Riya, then what is FPO? Riya, तो उसमें क्या होता है? Shares. Shares. What is FPO? देखो आता मोठी बोल. हाँ, what is FPO? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स खूप घास भरवत होता एकमेकांना आज. सांगा, what is FPO? चम्मच से एक दूसरे को खिला रहे थे आज. तो सांगा. हाँ, आने के बाद बोलती हूँ. बोलो अग्रवाल जी, व्हाट इज एफपीओ? जब कभी भी कंपनी जो पहली बार शेयर्स इश्यू करती है, उसके बाद वापस से री इश्यू और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं. सेकंड टाइम जब शेयर का इश्यू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट? फोटो. IPO, initial public offer, refers to the process of offering the shares of the company to the public for the very first time. Investors can directly buy the securities from the issuing company. Further public offer, FPO, or follow up on public offer. When company issues shares to the public after an initial public offer, it is called as further or follow on public offer, right? Now understand the point. In case of issue of shares in FPO or IPO, in both the cases they are traded in the primary market. Next point is right issue. Next point is right issue. What is right issue, Dharma? Existing employees को देते हैं. Exist employees बोला तो कहीं कोई. हाँ, क्या है right issue? कौन से इन्वेस्टर? तो उसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं. हाँ. Whenever the right to buy newly issued shares of the company is given to the existing shareholders, it is called as right issue. It is called as right issue. When a company is in need of additional funds, they can first collect it from their own current investors by giving them an opportunity to buy the shares of the company. Such an issue of shares is called as right issue, as existing shareholders are given the right to buy the shares before it is offered to public. Hence, this is called as right issue. What is private placement, Isha Vattamar? To specific members, group of members, group of people. Private placement is when shares are offered to specific group of people. Example, the directors, the relatives of directors, relatives of the members, right? Such kind of offering of the shares to specific persons or related persons is called as private placement. Private placement means when a company offers its securities to select group of persons identified by the board, excluding the qualified institutional buyers and employees, not exceeding 200. This helps the company to raise the funds sufficiently quickly and economically. As we all know, private placement applies in case of a private company and it does not apply in case of a public company. Last point of discussion at this particular chapter is secondary market.
Now, primary market is a market where the shares are issued or the shares of securities are issued for the first time. जब कभी भी किसी सिक्योरिटी को पहली बार जब इशू किया जाता है तो वो कौन से मार्केट में ट्रेड होता है? प्राइमरी मार्केट में. लेकिन ऑलरेडी इशू किए गए शेयर्स को बाइंग और सेलिंग दोबारा हो रहा है. That will happen in primary market? No, that has to happen in the secondary market. That has to happen in the secondary market, right? Secondary market is more commonly known as stock market or stock exchange. Here previously issued securities are bought and sold by the investors. After IPO, when the shares are listed in the stock exchange, they can be traded in the secondary market. In this market, the securities are traded between the investors. The securities are traded between the investors. The main difference between primary and secondary market is that in primary market, only new securities are issued, whereas in secondary market, the already existing securities are traded. There is no fresh issue of securities in the secondary market, right? Now, there is some additional information of other types of market, which talks about commodity market, derivative market and foreign exchange market. The commodity market deals with all the commodity prices and commodity dealing, and the foreign exchange market deals with the foreign currency market, right? So, this marks the end of chapter number, what's the chapter number? Chapter number 11, okay? Come to page number, मैंने ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताया ना डे 1 को, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है बताया ना. ओके, कम टू पेज नंबर 168. कम टू पेज नंबर 168. कम टू पेज नंबर 168. मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 तक लिखने के लिए कहा है. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 5 तक बताया था. Question number 1 to 5, 6th and 7 can be left out. 6th and 7 can be left out, right? 6th and 7 can be left out. लेकिन ऑलरेडी 5 तक लिखना है. अगर आप चाहो लिखना चाहते हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो. शौक तो किसी को भी नहीं है बेटा, लेकिन क्या है, छठे में से अगर जस्टिफाई आ गया तो वहां पे एक आधा पॉइंट अपने को मिल जाएगा लिखने का, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज जो है. अच्छा, एक तुम्हारा पसंदीदा काम कराऊं सब लोगों को? हाँ, पसंदीदा काम कराऊं. पेंसिल लो, हाथ में टेक्स्ट बुक पकड़ो, चलो चैप्टर नंबर 1 to 12 का सिलेबस डिलीट करने का काम करते हैं. सिलेबस डिलीट करने का काम करते हैं. ए पीयूष, अब पीछे कौन है? साहिल इकडे. सेक्रेटरी प्रॅक्टिसचा पुस्तक तिकडं डिलीट केलेलं असेल तर द्या म्हणा, जुन्या स्टॉक मध्ये जे आहे ते. मंगवानी मोबाईल अंदर रख. चलो, अब बात समझने की कोशिश करिए. प्लीज पे अटेंशन. पहले मैंने सोचा कि 25% डिडक्टेड पोर्शन है, इसके बारे में जानकारी पीछे से दूंगा, लेकिन मैंने सोचा यार बाकियों को तो छोड़ो जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गौर गरीब बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी. तो जो गौर गरीब बच्चे हैं उन्हें 75% पर भी अगर हम चलाने में कामयाब रहे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. तो इको एसपी और ओसीएम का जो भी 25% डिडक्टेड पार्ट है, वो डिडक्टेड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ. तो उस डिडक्टेड पार्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो चाहो तो आप छोड़ सकते हो, वो चाहो तो आप छोड़ सकते हो. जो चैप्टर हो गए उनका 100% करके रखना है. अभी जो चैप्टर बचे हैं इनमें से एक्सरसाइज जैसे मैंने 1 to 5 क्वेश्चन भी बताया, उन 1 to 5 में कोई 25% के पोर्शन का पार्ट का क्वेश्चन है तो वो भी स्किप किया जा सकता है राइटिंग वर्क. इवन दैट कैन बी स्किप्ड. ओके, मैंने आपको 25% सिलेबस का रूल बताया क्या?
हैव आई एक्सप्लेन्ड यू द रूल? रूल बताया था 25% का. इशिता, डू यू नो द रूल? व्हाट इज द रूल? रूल क्या है? क्या है गायत्री रूल? नाउ अंडरस्टैंड द रूल एंड प्रोसेस. रिया ध्यान दीजिए. आएगा जुनी कट केलेली इकोची याची द्या बरं. दे रे दाय मजा मास निकाल के द्या. दायमा फेवरेट है वैसे. निकाल के बता दायमा. त्याच्यात नाही आहे. हा तेच कट केलेले का पण. बातें मत करो. नहीं आवाज कट केलेले. हर्षराजची बुक होती तीच आहे का? चलो ओके. कम टू पेज नंबर 7, पान नंबर 7. स्टार्ट से, शुरुआत से चलते हैं, पीछे से आगे से. पान नंबर 7, पेज नंबर 7. Yes, please pay attention. Page number 7. Page number 7. पान नंबर 7. काका अजून इकॉनॉमिक्सची एक पुस्तक आहे. पेज नंबर 7. यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि चैप्टर नंबर 1 में कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद का जितना भी पार्ट है दैट इज डिलीटेड. हाँ क्या? अरे you all should be very happy that capital structure वाला जो पार्ट है that is deleted. हाँ शायद अगर आप आपस में बातें करते रहे तो फिर ये मजेदार जो काम है आपके इंटरेस्ट का आप ध्यान नहीं दे पाओगे. ध्यान लो. नहीं तुम लोगों को मालूम है, तुम लोग कर लो. आपस में बातें करने तो फिर मेरे बोलने का क्या काम है. शेट्टू अरे काबरा ऐसा मत कर प्लीज. कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है पेज नंबर 7 से लेके पीछे पैरा तक उतना कट है बस. हाँ नहीं उतना है बस. पेज नंबर 7 कैपिटल स्ट्रक्चर का हेडिंग है, डेफिनेशन वाला हेडिंग है. और कंपनी से लेकर पीछे लेकर टाइप्स ऑफ कैपिटल तक डिलीट है. ऊपर हाँ अरे मैं थोड़ी बोर्ड हूं. अच्छा मेरी बात सुनो. अच्छा नहीं तुम पहले एक तो आपस में बात करो. ये तू उठ तिथं बस. उठ लवकर उठ म्हणलं ना. हाँ लागवायचं नहीं. हाँ पेज नंबर 7 में कैपिटल
स्ट्रक्चर। पेज नंबर 7 में ए मोटी पेज नंबर 7 ए मंगवानी। पेज नंबर 7 पे कैपिटल स्ट्रक्चर है, वहां से लेके चैप्टर के एंड तक सारा पार्ट कैंसिल है। सारा पार्ट यानी सगळं काही कॅन्सल आहे। अब प्लीज 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 आप गौर करें, बच्चे ध्यान दे। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी आपका पार्ट है या उसके ऊपर के क्वेश्चंस है तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ए इधर ध्यान दे रहे। अब 25% का जो पोर्शन डिलीट किया जा रहा है उसके रूल समझो। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर्ड है, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन में होगा, 25% के क्वेश्चन ऑप्शन में होंगे। मान लो हमारे पीयूष ने कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, डेफिनेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर आया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट 25% ऑफ सिलेबस इज गिवन फॉर सेल्फ स्टडी। इवन इफ स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर फुल मार्क्स। दैट क्वेश्चन हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर फुल मार्क्स। यानी अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और वो अगर आपने लिख दिया तो उसमें फुल मार्क आपकी गारंटी है। और वही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायरिंग वर्किंग कैपिटल, अगर क्वेश्चन आया है वो लिखा है तो उसके अंदर फुल मार्क्स की गारंटी नहीं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द 75% सिलेबस। तो 25 करने में समझदारी है, लेकिन 25% अगर छोड़ दें, जो छोड़ना चाहे, जिनको कम कम पढ़ना है, शेट्टी जैसे गोर गरीब बच्चे जो है, उन लोगों के लिए 25% फायदेमंद है। तो जितना भी बचा एटलीस्ट उतना तो वो पढ़ सकते हैं। कम टू पेज नंबर Come to page number 22. ये वाले चैप्टर में जो चीज डिलीट होगा ना, मैं बोला कसम से बोल रहा हूँ, सब लोग बहुत खुश होंगे। जो भी डिलीट, 2 मिनट बताता हूँ, गड़बड़ मत करो। कम टू पेज नंबर 22। कम टू पेज नंबर 22। पेज नंबर आपस में बात करने का होगा तो बोलो मुझे। ए कृष्णा, मी बघायला तर डोळ्यासमोर ना, तू बोला ना तुला मित्रा, लक्ष दे। पेज नंबर 22। पेज नंबर 22। क्या शर्मा? पेज नंबर 22। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैंसल। डिटर्मिनेंट्स रिटेन्ड अर्निंग का डेफिनेशन है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स इज कैंसल। कैंसिल मत करो, वहां पे कट करके रखो, ऊपर हेडिंग पे पूरा स्केल से कट करते बैठोगे, उसे से बाजू में क्रॉस मार्क करके रखो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बस उतना ही। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, चलो किरण, कम टू पेज नंबर 28। पेज नंबर 28, 28। पेज नंबर 28 सबसे मजेदार पार्ट है चैप्टर का। पेज नंबर 28, प्लीज पे अटेंशन। सगळ्यात सुंदर हा पार्ट आहे आपला असा, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन। ओके प्लीज। पेज नंबर 28 पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां स्टार्ट होता है वहां से लेकर चैप्टर के एंड तक पूरा पार्ट कैंसिल है। ट्रेड क्रेडिट भी कैंसिल है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेडिंग भी कैंसिल है। फाइनेंशियल डिस्टिंग्विश नहीं, चैप्टर के एंड तक
प्लीज। ए उठ रहे वहां से, उठ उठ वहां से। पांचों तुम यहाँ आगे आके बैठो तो क्लास के बाहर निकलो। चलो पीछे के 5 तुम पहले आगे सामने बैठो तो बाहर निकलो फटाफट। चलो उठो जल्दी जल्दी उठो, उठो जल्दी, बाहर जाओ। चलो बैठ यहाँ पे, नहीं बैठ बैठ बैठ, ये बैठ इधर बैठ, बेबी इधर बैठ, बैठ सामने मेरे। फेसबुक कहाँ है तेरी? ए अन्नपूर्णा, अब ये वाले चैप्टर में अब ये जो पार्ट आते हैं ना, तो इन पार्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है आप क्रॉस मार्क करके एक्सरसाइज में लिख सकते हो, मतलब क्रॉस मार्क करके रख सकते हो। 25% डिलीटेड के क्वेश्चंस आप नहीं करो एक्सरसाइज के, या इतना पार्ट नहीं पढ़ो तो अच्छा। जिसमें कैसा है, बहुत से चैप्टर में ऐसे पार्ट 25% का मिलेगा जो आपका अच्छा है, तो बेहतर है उसे प्रिपेयर करो। जो आपका नहीं अच्छा उसको छोड़ के नक्की करो। नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 3, सबसे सुंदर वाला चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, चैप्टर डिलीट करोगे जीजा? चैप्टर डिलीट ना होता बा। ओके, कम टू पेज नंबर 40। कम टू पेज नंबर 40। कम टू पेज नंबर 40। ये सबसे अच्छा है, जो आता है वही डिलीट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज डिलीटेड। लेकिन अगर आपको आता है तो क्वेश्चन अगर आए तो बोनस ही अपने को। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंटायर हेडिंग इज डिलीटेड। एंटायर हेडिंग डिलीटेड। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अगले वाले डिलीटेड पार्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप में से कोई किसी का मेरे को मारने का, फांसी देने की इरादा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको पढ़ने लगाया है। कम टू पेज नंबर 51। कम टू पेज नंबर, नहीं, कम टू पेज नंबर 51। कम टू पेज, ये क्या सबको दिखता ना रे? ये क्या, ये क्या 51 बोलने में समझ ना, 51। ए गजा निर्बस। कम टू पेज नंबर 51। प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज डिलीटेड। डिलीटेड यानी आप डिटेल आंसर के लिए अपने को करने क्या है, चैप्टर नंबर 2 और प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इज फ्रॉम द 25% पार्ट। कम टू पेज नंबर 54, अजून संपलेला नाही। कम टू पेज नंबर 54। प्लीज डिलीट कॉल्स फॉर फ्यूचर सरेंडर। पूरा तीनों, ट्रांसफर नहीं। और अब डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से अगर जाते हैं तो मेरी बात लिख के लो। आपको फाइनल एग्जाम में जो डिफरेंस आएगा, एक दैट विल कंपल्सरी बी डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपको जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आना ही है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स 100% आना है। डोंट वरी, पेपर आने के पहले मैं आपको 100 मार्क का पेपर एसपी का निकाल के दूंगा। 116 में से 100 मार्क का पेपर आना ही चाहिए, नहीं तो 100% फीस रिफंड। कॉल्स फॉर फ्यूचर एंड सरेंडर। चलो हो गया बेटा, इतना चाहिए, ज्यादा उम्मीद मत करो चैप्टर से। कम टू नेक्स्ट चैप्टर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर डिलीट करना है क्या? कम टू पेज नंबर 74। सिर्फ लास्ट हेडिंग डिबेंचर ट्रस्टी डिलीटेड है, तो ये चैप्टर प्रोसीजर और प्रोविजन लास्ट पॉइंट मी मनाने लिख रहा है। ऐकलं येत नाही का?
डिबेंचर ट्रस्टी वाला वहां से आगे बचा कुचा चैप्टर डिलीट। डिबेंचर ट्रस्टी से लेके लास्ट तक जो कुछ भी बचा कुचा चैप्टर में डिलीट करा किरण, डिलीट। कम टू पेज नंबर, अब जैसे देखो पेज नंबर 79 पे अगर आप जाओगे, सी मजे की बात देखो, 79 पेज पे आओ, आंसर इन ब्रीफ में 3 क्वेश्चन, उसमें 2 ट्रस्ट डीड और ट्रस्टी पेज है, तो एक ही क्वेश्चन बचता है अपने को ब्रीफ में करने के लिए। ब्रीफ में करने के लिए एक ही क्वेश्चन बचता है। तो इस हिसाब से 25% डिलीटेड पोर्शन का इस्तेमाल कहां करना है सबसे मेन समझने की कोशिश करो। यू कैन मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ 25% डिलीटेड पोर्शन फॉर दो स्टूडेंट व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर इन बिटवीन क्वेश्चंस। कुछ के डिटेल अच्छे हैं, कुछ के डिस्टिंग्विश और ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं। ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो बीच के जस्टिफाई, ब्रीफ, उन क्वेश्चन में। तो वहां कितने सारे क्वेश्चन से कौन से करना नहीं करना वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बेहतर है 75% पार्ट वाले क्वेश्चन करो, 25% वाले मत करो ब्रीफ वगैरह के लिए। और भी है क्वेश्चन नंबर 5 में भी जैसे डिलीटेड है, 3 जस्टिफाई है, 3 में से एक जो है डिबेंचर ट्रस्ट इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर इशूइंग डिबेंचर्स। तो एक तरह से देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम टू पेज नंबर 80 and one more announcement. Our first round of 100% will be purely only on 75% syllabus, यानी ये 25% डिलीटेड पोर्शन के किसी भी पार्ट में से मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है? हाँ, अभी से नहीं का विषय नहीं रहता वो, आप समझ लो 25 की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो बोनस मिलता वो क्यों छोड़ने का। जैसे मैंने क्या बोला, जब मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि 25% डिलीटेड पोर्शन में से ब्रीफ क्वेश्चन ये नहीं पूछना है, तो मैं वहां नहीं पूछूंगा। लेकिन 25% का एडवांटेज कहां लेना है अपने को, डिटेल आंसर में। डिटेल आंसर में अटेम्प्ट करने के मार्क मिल रहे हैं ना। बहुत से गरीब बच्चों को तो पॉइंट भी नहीं आते हैं। हाँ, कुछ भी लिखो, सेल्फ स्टडी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को फुल मार्क है। और हाँ, एक और अच्छी बात बताऊं आपको, बहुत से लोगों को मालूम नहीं, सीबीएसई वाले बोर्ड तरस जाएंगे ये वाले पॉइंट सुनने को कि काश हम 10वीं में भी सीबीएसई छोड़कर स्टेट बोर्ड में होते। आप एक ऑब्जेक्टिव के 2 आंसर लिख सकते हो। सुन लो मेरी बात, हाँ मत करो, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 1C ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर, प्लीज लिसन टू मी, सुनना है ना तो ध्यान से सुनो, इंस्ट्रक्शन सारे। क्वेश्चन नंबर 1C ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1C ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, शेयर्स इश्यूड फॉर फर्स्ट टाइम are issued under FPO, true or false? False, बरोबर। लेकिन false जोली को लगा ट्रू है, तो उसने शुरुआती पन्ने में क्वेश्चन नंबर 1C में फर्स्ट बीट में लिख दिया ट्रू और फिर बाद में 1C में लिख दिया फॉल्स। इट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। ये स्टेट बोर्ड है। एक सेकंड, आपको क्वेश्चन क्या करना है, सुनो मेरी बात। अब वहां मत, अब सर ने बोल दिया डबल लिखने का, नहीं तो हाउलेक जैसे मत करना, पहले वाला लिख दिया क्वेश्चन ट्रू, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 भी फॉल्स, वैसा मत करना। सर ने बोला डबल लिखे तो मार्क मिलते, वैसा नहीं। समझो शुरुआत पन्नों पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, लास्ट पे पन्ने पे वापस क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, तो ऐसे केस में दोनों में से अगर एक ऑप्शन भी करेक्ट है तो नंबर मिल जाते हैं आपको। समझ में आ रही है बात? हो, एक मिनट, पूरे लिखने की जरूरत नहीं रहती, एक हाथ दूसरा आपने को डाउट रहा उतना लिखने का। हाँ, एमसीक्यू में भी, मैथ्स के एमसीक्यू में भी, अकाउंट्स के एमसीक्यू में भी, कैलकुलेशन अगर 2 आते हैं आपको लगता है या कोई डबल इफेक्ट है, जैसे अभी समझ लो कैपिटल फंड है या कौन सा फंड है, वर्किंग कैपिटल लिख सकते। जैसे क्वेश्चन आया था कैपिटल फंड, वर्किंग कैपिटल, तो किसी को लगा वर्किंग कैपिटल, किसी को लगा कैपिटल फंड, तो आप डबल लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? सेबी वाला पॉइंट था, सर ने बताया 5% टेक्स्ट बुक में पड़ा, 10% आपने को याद आ रहा, 5, 10 दोनों भी है, दोनों बार लिख दो, एक आगे एक पीछे लिख दो, जो सही रहेगा अपने को नंबर मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन इतनी नौबत नहीं आएंगी क्योंकि मैं बाहर से चिट्ठे फेंक दूंगा तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव की, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी ये लास्ट आपका टेक्स्ट बुक फेंकता ना ऊपर से, तो आखिर एक बात समझने की कोशिश करो, प्लीज एक बात समझने की कोशिश करिए।
ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक, कुछ चीज कोई कुछ नहीं हुआ, आगे पीछे अपने नसीब खराब थे, आगे शेट्टे पीछे कोई और, ऐसे लोग आगे इधर बैठे तो क्या कर लेंगे अभी हो। तो मतलब दीक्षा बैठी है, सामने शेट्टिया बैठा है हाँ, और पीछे और कोई बैठा है, बेचारा वो क्या कर लेंगे। तो ऐसे लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे पास कुछ तो हथियार चाहिए, इसलिए आगे एक पीछे एक डबल तरफ लिख देना, अपने को नंबर मिल जाते हैं। ये ट्रिक्स है, और भी ऐसे ट्रिक्स निकाल के तुमको बताता हूँ, और भी ऐसे ट्रिक्स है। और ये ट्रिक्स बताने वाले और कोई नहीं, हमारे चीफ मॉडरेटर है। बोलो गोरे सर की। गोरे सर आज कुछ भी नहीं बोलेंगे, आज कुछ भी नहीं बोलेंगे। कौन है तो कला आवाज काढला कसला, क्या इरादा है भले तुम्हारा? सही है। डिपॉजिट्स पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84. You will be very happy to know that the entire procedure for the deposits is deleted in the last part of the chapter. Procedure for accepting deposits from public cut, procedure for accepting deposits from members cut. एक सेकंड, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया मैं क्यों बोला ये चैप्टर इजी पिकिंग है। अब बचा के चैप्टर में मेन सबसे दिमाग का काम है, इसमें प्रोसीजर ही है, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं बचा। देखो सुनो मेरी बात, एक मिनट। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिपॉजिट्स, क्या हम डिटेल आंसर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे क्या? नहीं। किस लिए कर रहे थे? ब्रीफ आंसर 25 बात दिला छोड़ा। समझ में आई बात? समझा? प्रोसीजर डिलीटेड, come to page number 133. Page number 133. Page 133. अब 25% डिलीटेड में से जो लेटर है वो मैंने नोटिंग नहीं की है, उसकी नोटिंग कर आपको जो डिलीटेड लेटर से वो बता दूंगा। तीनों चैप्टर के जो डिलीटेड लेटर है, पेज नंबर 133, हेडिंग का नाम है फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, वहां से शुरू होकर प्रोसीजर तक की पूरी हेडिंग डिलीटेड है। प्रोसीजर अगले पन्ने पे, प्रोसीजर तक सबसे किचकट चैप्टर है, बहुत दिमाग खाओ सड़ेल चैप्टर है। वो खाली डायग्राम से देखो कितना सुंदर और कितना आसान होगा। सुनो मेरी बात, फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी पेज नंबर 133 से लेके 135 पेज नंबर तक का जो सेकंड प्रोसीजर है ना, डिपॉजिट्स इन इंडिया के ऊपर तक की पूरी हेडिंग डिलीटेड है। डिपॉजिट्स इन इंडिया के ऊपर तक की सारी हेडिंग डिलीटेड है। वो डायग्राम देख के देखो कितना इजी है। वो टर्म पढ़ाने शुरू करेंगे तो समझ में आएगा इजी। चला, पढ़ाना तो सब है बेटा, पढ़ेंगे सब, छोड़ना कुछ नहीं। अधूरा नॉलेज इज रिस्की। पेज नंबर 147, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड कट, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेज 147, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो एक डिस्टिंग्विश तुमको कंपलसरी बोला है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, दूसरा इंटरिम, फाइनल, डिविडेंड और इंटरेस्ट कंपलसरी। एक ये डिफरेंस, एक वो डिफरेंस, और अपने दूसरे चैप्टर में से इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, वो तीन, ये तीन डिफरेंस लिख के लो, चौथा डिफरेंस भी करने की जरूरत नहीं। सब सिस्टमैटिक तुमको मैं क्वेश्चंस दे दूंगा निकाल कर। इतनी बड़ी एक्सरसाइज पहले लिखो, फिर बाद में, अभी से नहीं देने की, छाट के बाद में दूंगा क्वेश्चंस कितने करने के। हर चैप्टर में से 8-10 क्वेश्चन निकाल के दूंगा, उतने कर लेना बस क्वेश्चन वाइज। जैसे ऑब्जेक्टिव छोड़कर ब्रीफ में कौन से क्वेश्चंस करने के हैं, शॉर्ट में कौन से करने के हैं, जस्टिफाई में कौन से करने के, एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चन करना। उसमें से आपको जितने लिखने हैं फाइनल में उतने कंपलसरी आ जाएंगे। कम टू पान नंबर 160। सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट है, हाँ वहां से सम इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट पॉइंट दोनों भी डिलीटेड है। इसमें कॉल मनी, ये ट्रेजरी, ये थोड़े किचकट थे, नए भी ये कंसेप्ट जरे। हाँ पेज नंबर 160 का सम इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 161 पूरा पेज नंबर 162 पे मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंस्ट्रूमेंट तक डिलीटेड है। कैपिटल मार्केट से आगे सारी हेडिंग रहेगी, कैपिटल मार्केट से सारी हेडिंग रहेगी। और एक ले लो डिफरेंशिएशन के लिए अपना एकदम चुम्मा, एकदम 5 पॉइंट, क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। डिफरेंशिएट बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फेवरेट है। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये फेवरेट मेरे क्वेश्चन आप भी दो या बाद में दो? डिलीट तो हो गया ना, अभी देने हैं या बाद में देने हैं? अभी देने हैं बाद में देने? अभी देने हैं या बाद में देने हैं? कौन से क्वेश्चन आ सकते नहीं देता मैं, आते छे वही देता हूं। आ सकते का फॉर्मूला नहीं अपने पास। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कौन सा भी अपन वांदे करने नहीं, कौन सी तुम तीर मारने वाले हो वांदे कहते। क्वेश्चन पेज नंबर 173, पेज 173, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। 18 कंसेप्ट है, पूरे के पूरे 18 डिलीट, पूरे के पूरे 18 डिलीट, पूरे के पूरे 18 डिलीट, पूरे के पूरे 18 डिलीट। एंड वन मोर पॉइंट, कम टू पेज नंबर 175, उस चैप्टर में डिस्टिंग्विश है जॉबर ब्रोकर डिलीट, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉबर ब्रोकर डिलीट, क्योंकि वो टर्म में आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। जॉबर ब्रोकर डिलीट, जॉबर ब्रोकर डिलीट। अब सुनो मेरी बात, चलो और मजेदार चीज बताता हूं। हाँ एक मिनट, मार्कर लेके आओ, मार्कर लेके आओ, फटाफट मार्कर लेके आओ, चलो। देखो फाइनल पेपर प्रेडिक्ट करना, फाइनल पेपर प्रेडिक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश समझाता हूं तो आप समझ जाओगे एग्जैक्टली क्या करना है। अभी के लिए मैं डिस्टिंग्विश, टाइम हो गया क्या मेरा? गोरे सर आलेगा? कितना टाइम हो रहा है? अच्छा ठीक है, गोरे सर आएंगे अभी 5 मिनट में, ज्यादा नहीं। मैं भी डिस्टिंग्विश बताता हूं तुम लोगों को कि क्या एग्जैक्टली करना है। फटाफट 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 फटाफट। चेंज होते रहता हो। चलिए ध्यान दीजिए, कल लेक्चर में याद दिलाना मुझे, कल सप्लाई के इकोनॉमिक, सॉरी कल लेक्चर है तो बोलता हूँ। हाँ आज मेरा फिक्स है ना अपना। अच्छा बॉयज, कल पूजनीय, परम प्रिय
हमारे अजमेरा जी की बर्थडे पार्टीज है। सो 3 से 6 एक्स्ट्रा क्लास है सब बॉयज की। अनुसाय में नहीं, अनुसाय नहीं, नरेश में, नरेश। 3 to 6 एक्स्ट्रा क्लास विथ पुष्पा मैम सिखाएंगे अपने को। आणि पेपर जो आहे सकाळच्या वेळेत होणार आहे और उसके पहले क्लास होगा। दरबदरी में यस टेक्स्ट बुक। एक मिनट फटाफट ध्यान दो। टेक्स्ट बुक ओपन करो। चैप्टर नंबर 1 के पीछे के डिफरेंस बताओ। चलो चैप्टर नंबर 1 के पीछे डिफरेंस बताओ। हाँ वर्किंग एक ही है क्या? हाँ चलो चैप्टर नंबर 2 के बताओ। एक मिनट, अरे तू बता रहा ना, 2 मिनट ठहरना, दम क्या काट रहा, पागल ऐसे मत कर। शेयर डिबेंचर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ओन्ड एंड बोरोड। हाँ चलो नेक्स्ट चैप्टर, आईपीओ, एफपीओ। नेक्स्ट फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग। राइट इश्यू, राइट एंड बोनस। हाँ नेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अगला चैप्टर करस्पॉन्डेंस के डिस्टिंग्विशमेंट बताना। हाँ आगे लेटर के आगे वाले चैप्टर ए। हाँ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यस 10वां। फाइनल एंड इंटरिम। प्लीज मनी एंड कैपिटल। अजून समज मा वगैरे त्यानं बोलवलं एकदा शांत भेट बोलायचं। जॉबर वो तो डिलीट ही है। चलो ठीक। डी एंड डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन व्हाटएवर। चलो इकडे लक्ष द्या। अब पेपर का एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे एक्सरसाइज से आप फाइनल पेपर खुद ही निकाल सकते हो, समझने की कोशिश करो। अब अपने को पेपर में 3 डिस्टिंग्विश लिखने हैं 5-5 मार्क के। कितने लिखने हैं? कितने हैं? 3 आएंगे। कितने आपको? 5 आएंगे। कितने आपको? 5। अब अपने को पूरे डिस्टिंग्विश कितने हैं? 13। एक 14 था वो तो डिलीट हो गया। अब इनमें से आपके पसंदीदा कोई भी 9 पकड़ो। 9 कोई भी 9। अब इसके अंदर आप आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर किसी को भी यहाँ पे बोलने की जरूरत। देखो एक बात तो पक्की है, ये वाला तो बहुत आसान है सभी के हिसाब से। ये चैप्टर तो एक जैसा चैप्टर घुमा फिरा के इधर के उधर, उधर के इधर, इल्टी पलटी उल्टी, इधर के उधर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से क्या डिलीट करना है, जिसने टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिक्स्ड बिल्डिंग ये जो है ये छोड़ दो। फिक्स्ड बिल्डिंग जो है वो छोड़ दो। फिक्स्ड बिल्डिंग जो है छोड़ दो। आप ये मटर जो भी है, मटेरियल विटेरियल सब छोड़ दो। मटेरियल। अब देखो आपके पास ऑप्शन है एक, सॉरी ये डिलीट वाला कर देगा।
सुनो मेरी बात, पूरे कितने अपने पास 13, 13 में से 2 मैंने कंपलसरी डिलीट कर दिए सब लोगों के लिए, बचे कितने 11। अब 11 में से 9 आप सेलेक्ट करो, 2 जो छोड़ना है मन से छोड़ो। समझ में आया? इसमें से जो 2 11 से 11 करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गिन के 11 करने, गिन के 11 करने, करते हैं तो बहुत अच्छा। गोर गरीब बच्चे अगर चाहे, जिसको फिक्स्ड 7 लकी नंबर 7 चाहिए, 7 सुन लो। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, प्लीज, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इंटरिम डिविडेंड एंड डिविडेंड, प्राइमरी मार्केट, सॉरी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक दो तीन चार, 4 दिए ना। इक्विटी प्रेफरेंस, एक दो तीन चार पांच, फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड, 1 2 3 4 5 6, एंड राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू, माई 7, प्राइस ऑफ 7, 7 लकी 7, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फाइनल, इंटरिम, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब ये 7 में से 1001 आप, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये 7 में से 5 आएंगे, मैं आपको ये बात की गारंटी नहीं दे रहा कि ये 7 में से 5 आएंगे, लेकिन एक बात की गारंटी देता, जो भी 5 आएंगे उन 5 में से ये 3, ये 7 में से 3 तो आप पक्का फाइनल एग्जाम में लिख पाओगे। मतलब आएंगे आपको कितने फाइनल एग्जाम में? 5 आने पूरे मिलाकर, पूरे मिलाकर कितने आने? 5। अभी मैंने कितने लिए यहाँ पर? 7। छोड़े कितने मैंने? 4। कौन से छोड़े? शेयर्स एंड डिबेंचर एक छोड़ा है। देखो समझाता हूँ मैं कैसा प्रिडिक्शन करता हूँ, समझ जाता हूँ आप लोगों को। शेयर डिबेंचर एक छोड़ा है, ठीक है। फिर दूसरा छोड़ा है ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल छोड़ा है, ओके। आईपीओ एफपीओ एक छोड़ा है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट छोड़ा है। ये दोनों तो एक ही चैप्टर के हैं, ऑलरेडी समझ लो। ये पूछ लिया तो ये दोनों पूछना है क्या? नहीं। अगर ये पूछा तो बाकी पूछना है क्या? नहीं। बोलने का मतलब क्या है, ऑलरेडी जो मैंने छोड़े हैं उसी चैप्टर के अंदर के रिपीटेड छोड़े हैं। तो अगर बाय बैड लक भी अगर बच्चे वाले 2 में पूरे 5 है, बरोबर, 7 निकाले पूरे 11 है, तो अदर 4 में से 2 आएंगे तो भी बच्चे वाले जो 7 है उसमें से 3 तो पक्के आएंगे। समझ में आ रहा क्या मैथ्स कुछ? अरे रे सुनो मेरी बात, पूरे कितने अपने पास? 14 है। 14 में से 25% का एकदम शायद, मैं मैथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे तुम सुनो ना यार 2 मिनट। आपके पास प्लीज प्लीज अभी मजाक नहीं, मैं बता रहा हूं प्रेडिक्शन कैसा है। आपके पास पूरे हैं 14 डिफरेंस, जिसमें से 25% का हमने डिलीट कर दिया। बचे कितने हैं? 13। 13 में से 2 तो मैंने उड़ा दिए, बचे कितने? 11। 11 में से मैंने लकी 7 निकाले, लकी 7 इज ऑलवेज लकी। तो लकी 7 में से अपने को 3 डिफरेंस आना ही चाहिए, 3 डिफरेंस तो आना ही चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, विथ और कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन। तो अपने 7 में से 3 आ गए, तो बच्चे वाले 2 जो एक्स्ट्रा फाइनल एग्जाम में आएंगे तो वो उन 4 में से आएंगे। इतना तो बैड लक तुम्हारा है नहीं कि 5 में से 4, वो 4 छोड़े उसमें से आएंगे, क्योंकि चैप्टर वैसे नहीं है। चैप्टर की चूजिंग जो है, चैप्टर का सिलेक्शन जो है वैसा नहीं है कि उन चैप्टर को एक्सक्लूड करके पूरे की पूरे 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन उन्हीं डिफरेंस में से आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलने का मुद्दा समझ रहे हो क्या? बोलने का मुद्दा ये है कि पेपर प्रेडिक्ट कब नहीं होता। ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 में से जो 4 हमने छोड़े हैं वो 4 ही क्वेश्चन चारों के चारों आ गए तो फिर क्या पंगा हो जाएगा? ऐसा होता नहीं है। कितना भी बुरा बैड लग रन दो, कुछ भी रन दो, आई एम टेलिंग यू, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया हूं, 7 में से कंपल्सरी 5 के 5 यही आएंगे। बहुत सोच समझ के सिलेक्शन है, 1001% 5 यही आने। नहीं भी आए तो कंपल्सरी 3 में तो ये 7 में क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे। अगर ये 7 भी करते एसपी में आपके 15 मार्क डिफरेंशिएशन के
100% पक्के हैं, 100% पक्के हैं, 1000% पक्के हैं। बात समझ में आई? चैप्टर नंबर 2 के डिटेल आंसर, चैप्टर नंबर 2 के डिटेल आंसर, चैप्टर नंबर 3 का प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, 8 मार्क डिटेल के अपने वहीं पक्के। बाकी कोई चैप्टर खोलना भी नहीं, देखना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, करना भी नहीं। बात समझ में आ रही? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का पेपर का एनालिसिस मैं आपको धीरे धीरे सब चैप्टर का भी एंड जब होगा, एक एक चैप्टर के एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का अपन वहां पे पूरा एनालिसिस करेंगे। थैंक यू। कल का टाइम मैं ग्रुप पे डालता हूँ, और लेक्चर के टाइमिंग वो सब देख के डालूंगा। कोई भी उठा मत जगह से। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव की ट्रिक बता रहा था, शायद किसी को लगे सर झूठा ही बोलते हैं, तो चीफ मॉडरेटर आपके पास है, अब वो क्या बोलते हैं सुन लो ऑब्जेक्टिव के बारे में। हाँ हाँ, एक फक्त सूचना त्याच्यासाठी आहे, बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले सुन लो, मार्क्स आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, लेकिन पेपर की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। ख्याल में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्वेश्चन, अब दो ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से एक तो राइट है ही है, बिल्कुल है। अब दो ऑप्शन आपने शुरू में एक जगह पर आपने एक ऑप्शन लिखा, बाद में थोड़ा देर बाद आपने दूसरा ऑप्शन लिखा, दोनों भी जांचे जाएंगे और जो राइट है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक ख्याल में रखना कि यहाँ मार्क अगर मिल गए तो हो सकता है कि दूसरे जगह पर कहीं जहाँ पर आपको संभावना है मार्क की, वहाँ कम हो सकते हैं। चालते ना मार्क त्याला देण्याचा ते नियम आहे, परंतु काय असते क्वालिटी जी असते का पेपरची ती थोडी
नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स देना पड़ता ही नहीं हमें। और उसी हिसाब से देखा जाए तो दो पेपर दोनों करते ही, और वो बच्चे वैसे करते ही करते हैं। साइंस वाले तो कॉमन करते हैं, एक पेज पे एक लिखते हैं, लास्ट वाले पेज पे एक लिखते हैं। और आप लोगों को एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि आपकी जो मार्क्स है तीन तरीके से होते हैं। एक मतलब प्लस प्लस वाला रहता है, एक मीडियम रहता है, और एक नीचे सी वाला रहता है। मतलब ए, बी और सी तीन स्टेप रहती है। तो 50 के ऊपर 55 प्लस जिसको अपन बोलते हैं। तो साइंस में तो ऐसा रहता है, देखो 30 मार्क का प्रैक्टिकल है, उनको खाली 5 ही मार्क लेना है पासिंग के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ख्याल में मैथ, कितने मार्क लेना है उनको? खाली 5 मार्क। तो उसमें उनकी क्वालिटी नहीं, लेकिन उनको बाद में मालूम है क्या होता है प्रॉब्लम आगे। तो अपन उससे बहुत अलग है, कॉमर्स वाले, थोड़ा ख्याल रखना। इसलिए हर चीज़ में मार्ग है, लेकिन वो मार्ग सब जगह पर यूज़ नहीं करना। जहाँ बहुत ही अपने को अड़चन आती है उसी जगह यूज़ करो। अगर आपको एक ही में डाउट है उतने ही ये करो। जहाँ डाउट नहीं उसको काहे को ज़बरदस्ती ये करो। हाँ हाँ, ऐसा रहता है एग्जामिनर पेपर 100% जांचेगा। आप कुछ भी लिखो, एक अक्षर भी लिखा तो उसको लाल पेन से कुछ न कुछ मार्क करना पड़ता है। लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ होता है? जब आपका पेपर क्रॉस में जाता है ना, तो क्रॉस के समय उसका पूरा अकाउंट फिर आपका चेक होता है। हाँ, ये देखो, सबसे पहले तो जनरल पेपर जांचे जाते हैं, उसके बाद मॉडरेटर के पास जाते हैं। मॉडरेटर के पास भी हर पेपर का मॉडरेशन किया जाता है, लेकिन उसमें भी जो 70 के ऊपर मार्क्स रहते हैं उसका थोड़ा आउट ऑफ, मतलब 100 आउट ऑफ 70 के जो पेपर रहते हैं ना, उसका बहुत अच्छे तरीके से उसको बारीक देखा जाता है। उसके बाद फिर जो पेपर 80 के ऊपर जाते हैं, अगर समझ लो एक 100 का पेपर का बंडल है, और उसमें से अगर 20 या 25 ही पेपर निकल रहे हैं और वो पेपर सब 90 80 के ऊपर जा रहे हैं, वो पेपरों को अलग निकाला जाता है। फिर उसको क्रॉस मॉडरेशन होता है। और क्रॉस मॉडरेशन में ऐसा रहता है कि परभणी जिले का पेपर औरंगाबाद में जाएगा, औरंगाबाद का नगर में जाएगा, वहाँ से फिर अपना हिंगोली जो 4 डिवीजन के अंदर रहते हैं, फिर उसमें क्रॉस होते हैं। तो उस समय क्या रहता है कि मैंने मार्क्स दे दिए, एग्जामिनर ने दे दिए, मतलब वो क्रॉस वाला देगा ही, जरूरी नहीं। तो कभी कभी अगर वो देख लिया कि इसमें पूरा के पूरा हर जगह आपने वही स्टाइल यूज की है, तो वो आपको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पर करना है, जरूरत पड़ी तो जहाँ आपको बहुत ही डाउट है और आपको ऐसा लगता है कि इसमें करना है, तो वहीं करो आप, बस बाकी जगह मत करो। इतना बारीक गाड़ी को सीधा कर दो। और आपको आउट ऑफ मार्क वाले बहुत पेपर रहते बोर्ड में, ख्याल में रखो। तो आउट ऑफ मार्क मिल गए मतलब आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा भी नहीं रहता है। क्योंकि आपको मालूम है हर एग्जाम के बाद दूसरी एग्जाम है आपको आगे, है ना। आपको सी लाइन में जाना है तो वहाँ भी एग्जाम है, साइंस वाले को नीट है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना हो तो वहाँ पर भी एग्जाम है, हर जगह पर एग्जाम है। इसीलिए मार्क उसको, और वहाँ पर फिर आपकी चालनी चालू हो जाती है, और वहाँ से फिर वो बच्चे की क्वालिटी समझ में आती है। तो इसलिए पहले, सबसे पहले अपन थोड़ा सा नीचे ही अगर प्रिपरेशन किया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। यहीं से तैयारी करो। और अभी आगे का भी बता देता हूँ मैं, जो हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से जो ट्रेनिंग हुई है और मीटिंग हुई, जो पेपर हिसाब के ऊपर निकालने से पहले, अभी आप खाली 60% में हो महाराष्ट्र के अंदर। अभी हर एक स्टेट का सिलेबस एक ही होने वाला है, जो केंद्र का है वही नीचे आने वाला है, सीबीएसई जैसा हो जाएगा पूरा की पूरा, एक ही किताब रहेगी पूरी ऑल इंडिया में। उस समय आपके सामने ये क्वालिटी रहेगी कि
जो पेपर का जो अभी चेंज हो गया आपके सामने पैसेज और ये सब जगह पर इस टाइम का जो हो गया वो पूरा एक जगह पर आएगा। उस समय थोड़ा ख्याल में रखना कि आपकी किताब और आपका जो स्तर है वो बदल जाएगा, क्योंकि जो CBSE वाले हैं उनको पूरा ख्याल में क्या स्तर रहता है। मैं अभी जो आपको 12वीं में पढ़ा रहा हूँ ना, वो दूसरी और तीसरी क्लास के लेवल के बच्चे CBSE वाले पढ़ते हैं। क्वालिटी का मैं फर्क बता रहा हूँ, और वही स्टाइल बाद में आपको आने वाली है। उस समय फिर आपको ख्याल में आएगा, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से भविष्य में होने वाला है। और वहाँ जाने के बाद ये सब चीज़ें उन लोग आपको देखते हैं इंटरव्यू में। महाराष्ट्र के अलावा आप कहीं भी बाहर जाओगे तो वहाँ पर थियरी के मार्क को ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, प्रैक्टिकल के मार्क, और वो भी प्रैक्टिकल सामने लेके आपको ये करना पड़ता है। आपके सामने प्रिपरेशन रखेंगे, अभी करके बताओ। अगर आपने कर दिया तो समझ लेना कि आपकी सब पहले की जो मार्क लिस्ट वगैरह वो बगल में रखेंगे। कंपनी वाले भी यही स्टाइल में करते हैं। आपकी डिग्री और आपके मार्क ये वैसे भी मिल सकते हैं आपको। कोई होम सेंटर आ गया या पोजरी पेड़गांव वगैरह कहीं भी चले गए, 4 घंटे पहले पेपर मिलता है, और 4 घंटे के बाद आप जब सबमिट करो जब वो लेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। और वजह के अलावा सब पता है ये काम क्या क्या करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आप खाली उस पेपर में आउट ऑफ कर लो, लेकिन वो करने से आपका प्रॉब्लम मिलेगा ये मत समझो। इसलिए तैयारी ये लेवल की रखो कि भविष्य में अपने को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ख्याल में आया? अभी आपके मार्क्स कम है, थोड़ा दुख तो लगेगा आपको कि भाई हमारे जितने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आए, क्योंकि अपनी कॉम्पिटिशन जैसे अभी आप यहाँ पर हो तो इस क्लास के हिसाब से कॉम्पिटिशन रहेगी, आपके रिलेटिव से कॉम्पिटिशन रहेगी है, या फिर जो आपके दिमाग में है कि ये मेरे से ऊँचा नहीं सकता, मैं उस हिसाब से आपकी कॉम्पिटिशन रहेगी। लेकिन अभी वो कॉम्पिटिशन है, बाद में फिर बहुत अलग तरीके से कॉम्पिटिशन है, तो थोड़ा ख्याल रखना। अभी आपको अपने तरफ से तो पता है कहीं जाएगा, जिनका अपन ने विचार भी नहीं किया था वो टॉप में चले गए। तो इसके बाद थोड़ा सा अपन दिमाग से तैयारी करने का व्यू रखो, हर चीज़ को समझो। मार्क्स 1-2 कम आया तो उसमें ज़्यादा दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य बहुत आगे का अलग है। बऱ्याच जणांचे पेपर मी बघितले, अजून पूर्ण झाला नाही, कारण पेपर तपासणं हे सगळ्यात बोरिंग काम आहे. तरी करावं लागतं, तिथं काही चर्चा नाही आहे. आवाज येतो ना माझा मागंपर्यंत? तर मी जवळपास कालही बसलो, थोडंसं आजही वेळ काढला, आता उद्या रविवारचा वेळ काढतो आणि पेपर देतो. आउट ऑफ वाला नाही गेला. थोडासा बाजू पेपर का ही करेंगे, क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम है वो हल कर देता है। जो बच्चों के नए वाले जो बच्चे हैं ना, उनका प्रॉब्लम अलग है, थोड़ा अलग तरीके का। और जो पेपर में जो प्रॉब्लम नहीं जहाँ होना नहीं चाहिए, वहाँ अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा उसका आपण थोडासा पुढचा भाग कव्हर करूया आपला राहिलेला कालचा. अजून म्हणजे सुरुवातीचे काही पेपर मागं पुढं आहे. काल काही जणांनी ऑलरेडी बघितले, काही जणांनी नाही केले, मागं पुढं जातो, त्यामुळे नंबर वाईज थोडा हा चला. कसं राहते, अगोदर जर सांगितलं ना तर त्याचं महत्त्व संपत. हा चला सर्वजण पेज नंबर 54 सेतुबंधन विषयक आणि कर्तव्याने. कालचं लक्षात आलं का? हा पाठ आपल्याला फार जास्त लक्ष देण्याची गरज नाही आहे. जंगल फक्त लक्ष द्या पाठाकडे, एवढा महत्वाचा पाठ नाही आहे. ठीक आहे. सेतुबंधन विषयक आणि कर्तव्याने. अरे फक्त ऐकून घ्या स्टोरी. पाठाचं स्टोरी जरी कळालं ना तर
आता पेपरमध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहे, इतके छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत की अपेक्षित नाही आहे तुमच्याकडून. त्याचं कारण फक्त एकच आहे की लक्ष आपलं त्या ठिकाणी नाही, म्हणून ते प्रॉब्लेम राहतो, बाकी काही कारण नाही. लक्षात आलं का? ठीक आहे, बघा. सेतू बंधन विषयक आणि कर्तव्याची, या ठिकाणी सेतू या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक होतो सेतू म्हणजे पूल, ब्रिज, आणि दुसरा सेतू शब्दाचा अर्थ होतो नहर. या ऐसा प्रोजेक्ट जो पानी लाने के लिए अलग से तैयार किया जाता है, उसको सेतू कहते हैं. बैगन से बरबरी के अंदर पानी आ रहा है, भाई से आ रहा है, नहर से आ रहा है. तो नहर के द्वारा आने वाला जो पानी रहता है उसको सेतु मिक्स करना, सेतु का सहोदकम आर्योदकम व सेतु बंधन. सह उदकम, उदक मतलब पाणी, आणि सह म्हणजे सोबत, या ठिकाणी पाणी आहे, आणि आर्योदकम या ठिकाणी पाणी नाही आहे, तिकडून त्या ठिकाणी सेतू केल्या गेलेला आहे पाणी. अशा प्रकारचे ठिकाणाला काय करायला पाहिजे, सेतू बंधने जोडायला पाहिजे. ठीक ना? त्याला या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पाण्याने जोडायला पाहिजे. त्याने पूर्ण पद्धतीनं बांध बनवायला पाहिजे आणि त्यामध्ये पाणी जोडायला पाहिजे. अन्येषां वा बंधकां भूमी मार्ग पुत्रोपकरणं कुर्यात् पुण्यस्थान आरामानं. आणि काय करायला पाहिजे, जर करत असताना जमीन कामासाठी केलेली आहे, त्याच्यामध्ये जर वृक्ष असतील, झाडं असतील, काही घरं येत असतील, त्यांना देखील काढून टाकायला पाहिजे आणि पूर्ण पद्धतीनं त्या ठिकाणी कार्य तयार करायला पाहिजे. आरामानं शब्दाचा अर्थ होतो पद्धती, चांगल्या प्रकारचं काढणं. आपण मराठवाड्यामध्ये फक्त शहर आहे पैठण नावाचं, त्या ठिकाणी पहिला प्रयोग केला गेला. जेव्हा पैठणचा डॅम तयार झाला, नाथसागर, त्या नाथसागरच्या खालच्या बाजूला विविध प्रकारचे कारंजे, परिवेशना कारंजे, बगीचा, उद्यान आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्यान तयार केले. ते लोकांना दर्शनासाठी आणि बघण्यासाठी त्या ठिकाणी होते. तुम्हाला माहिती असेल महाराष्ट्रामध्ये पैठणच्या अगोदर सर्वात मैसूरमध्ये अशा प्रकारची लक्ष्य प्लव हरितकन्या राजा स्वामी त्या ठिकाणी मत्स्य प्लव हरितकन्या. आता याच्यामध्ये काय काय केलं जातं, त्या ठिकाणी कार्यक्रम केला जातो. त्या ठिकाणी मत्स्योद्योग मासे पाळले जातात. त्यानंतर प्लव म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती असतात, पाण्यामध्ये उगवतात, त्यांचं चांगल्या प्रकारचं संरक्षण केलं जातं. आणि हरितकन्या अशा प्रकारची ठिकाणं त्या ठिकाणी पाणी आल्यानंतर अशा प्रकारचे कार्यक्रम त्या ठिकाणी केले जातात. आणि त्या संपूर्ण आणि त्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या ज्ञान द्यायला पाहिजे. पूर्व ठिकाण सेतूवर संचार करते असे अभिप्राय नैसर्गिक
आपकी गाड़ी